ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗੈਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਵੇਚੇਗੀ। A little short. We have a short presentation to make, and my colleague Mr. Yuvraj Verma will do the honors of translating it in Punjabi for our farmer friends. I hope Yuvraj, you can jump across the fence and get local over here. Thank you very much. This picture is quite familiar. Every year, almost more than 80% of the surplus residue is getting burnt. So this site is quite a normal site, what we have around us. And here we come to our technology. You see here on this picture, you see our process as a scheme. We are starting from collecting, harvesting the straw. Then we do a pre-treatment, the milling, and then we feed it into our fermenters, which are the big tanks you see outside there, the 10,000 cubic meter tanks. From there, we are cleaning the gas to natural gas quality, so it's equal to natural gas. And from there, supply gas to 10 Indian Oil retail outlets within a radius of roughly about 100 kilometers. So the farthest we go is towards Patiala, one-way distance of about 90-95 kilometers. So the important part to note over here is to sell 1 ton of gas, we end up traveling almost 160 kilometers. So that is something definitely which can be optimized. If you see how the sales is, it's quietly balanced between commercial vehicles and the passenger vehicles, as well as what you see over here is the consumption between the urban and the rural centers. The rural centers are consuming 1/4 and the rest is going into the Patiala belt, the urban areas. These are some key economic impacts which we should recall. We consume roughly about 100 to 120,000 tons of stubble per year. That is the capacity of this plant. Now this entire stubble can be collected from a radius of, let's say, roughly about 10 to 15 kilometers ideally. The second thing is, from this stubble we end up producing 11,000 tons of CBG annually on full capacity. The annual FOM, the fermented organic manure production capacity, is 225,000 tons. That's a big concern at the moment regarding the offtake. It will lead to reduced stubble burning across roughly about 50,000 acres of land. That is the impact this unit is going to make, which also means that this leads to reduced CO2 emission of roughly about 200,000 tons. Lastly and most importantly, also it ends up generating an employment of 900 people, 900 youth people from the catchment area. More than 80 to 90% of these youth are from the nearby villages. That is the impact of one unit, and this includes both direct as well as indirect employment. now come to why are we here. We are not here for this one unit. We are to multiply, and we see there's a huge potential in India. इसमें 8 डाइजेस्टर्स हैं 10,000 क्यूबिक मीटर के। ये प्लांट जो है, मुझे कहा गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात कर रहा था 1 लाख टन पैडी स्ट्रॉ, पर एक्चुअली उससे भी ज्यादा है। अभी हमने देखा प्रेजेंटेशन में 1 लाख टन नहीं है, 1,25,000 टन।
6 से 8 लेके सैटेलाइट लोकेशन जो 10 किलोमीटर की रेडियस में है, यहां पे डेली प्रोडक्शन 600 से 650 टन फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की प्रोडक्शन होगी। इस प्लांट में 390 हमारे साथियों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कोई 585-600 लोगों को। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि संगरूर के जो हमारे किसान भाई हैं उनके फार्मर्स इनकम बढ़ेगी और ये जो स्टबल बर्निंग, प्रणाली बर्निंग की समस्या है उसको एक समय एक हल करने का सबसे शानदार तरीका। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ही देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत में एक 2G सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया। दिस इज अ प्लांट विच मेक्स सेकेंड जनरेशन एथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल हैव 90 मिलियन लीटर एथेनॉल जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाया जाएगा। ये जो प्लांट आज जिसमें आप सब उद्घाटन में आप भाग ले रहे हैं, ये स्टबल बर्निंग जो है 40 से 45 हजार एकड़ में कमी होगी इसमें और 1.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की रिडक्शन होगी। इससे हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे नागरिक हैं संगरूर पंजाब में, they will be able to breathe cleaner air, but they will also contribute to India's COP26 climate change targets of total projected carbon emissions by 1 billion tons from now to 2030, achieving the target of net zero by 2070. ये प्लांट हमारे केंद्रीय सरकार की फ्रेमवर्क में कहां बैठता है? It will benefit the government of India's support for CBG based rural economy. We had earlier increased the rate of compressed biogas plants under the Satat scheme. We had raised it from 46 rupees per kilo to 54 rupees per kilo. During CBG production bundled with fertilizers like urea. मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो पराली का जो प्लांट है जिसे हम पैडी स्ट्रॉ कहते हैं, ये इंडिया का और एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है जी। इसके अंदर हम पराली को यूज़ करते हैं, जो पराली की गट्ठें यूज़ करते हैं, राउंड बेले हम कहते हैं उसको। इनका जो वेट होता है जी 400 से 500 किलो का एक गट्ठ का वेट होता है। ये जो हमारा प्लांट की जो कैपेसिटी है हमारी 33 टन CBG गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे हम कहते हैं, वो उसकी कैपेसिटी है। हमारे प्लांट के 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो CBG जो 33 टन पर डे है और दूसरी है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो आप देख सकते हैं सामने। ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खाद है विदाउट एनी केमिकल। ये एक दिन में फुल स्केल पे 600 से 650 टन पर डे निकला करेगी हमारी। और पराली की बात करते हैं, जो पराली हमारा रॉ मटेरियल है जिससे हम गैस बनाते हैं, ये पराली हम पूरे अगर प्लांट फुल कैपेसिटी पे चला करेगा तो 1 लाख टन एक साल की खपत है जी। 1 लाख टन की जो खपत है, आप मान सकते हो कि हम उसके अंदर जो एरिया कवर करेंगे, जिस अराउंड मोटा मोटा 30,000 एकड़ एरिया कवर करेंगे, जिसमें से हम पराली को इकट्ठी करेंगे। ये 30,000 एकड़ को इकट्ठा करने में अंदाज़ा 50 विलेजेस आसपास 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में हम कवर करेंगे। शुरू में हमने दूर से भी कवरेज की है जिसे हम बासमती कहते हैं, उसकी पराली भी हमने 35, 40, 50 किलोमीटर तक उसको भी किया है। और लेकिन हमारा मेन फोकस है कि आले दुआले के 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में जितनी मैक्सिमम पराली हम इकट्ठी कर सकते हैं, जिसमें हमारा मानना है कि 30,000 एकड़ का एरिया हम कवर करेंगे जी। इसके साथ जितनी हमारा मकसद है कि पराली जितनी हम इकट्ठी करेंगे उतनी पराली जलने से बचेगी, स्टबल बर्निंग कम होगी, जिससे जो प्रदूषण की समस्या है पंजाब, दिल्ली सभी जगह कम हो सके। और प्रदूषित हवा जैसे आप जानते हैं कि सभी के लिए ख़राब है, तो हमारा प्लांट का मेन मकसद है कि हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट जो दे सके, जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट का भी विज़न है, पंजाब गवर्नमेंट का भी विज़न है और हमारा
जर्मनी जो हमारी वर्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका भी एक विजन है। सर आपका पेट्रोलियम के साथ किन किन से टाई अप हुआ है गैस देने का? हमारा जो टाई अप है वो अभी के मान के चलें तो हमारा IOCL के साथ टाई अप है। इस समय जो हम कंप्रेस्ड बायोगैस जिसको हम कैस्केड्स के अंदर फिल करते हैं और वो हम IOCL के रिटेल आउटलेट्स पे देते हैं। अभी इस समय हम IOCL के 10 रिटेल आउटलेट्स पे ये गैस को दे रहे हैं और ये 10 रिटेल आउटलेट्स CBG में पूरे इंडिया में अभी तक हाईएस्ट है। कोई भी कंपनी अभी 10 रिटेल आउटलेट्स को सप्लाई CBG नहीं कर रही है। सर आपने कोई बाहर में भी साइट्स बनाई हैं जिसमें जो पराली इकट्ठी करके रखने के लिए, कितनी साइट्स हैं पूरे एरिया में? हाँ जी, हमारे पास एक तो हमारे प्लांट के अंदर साइट है जी, ठीक है, और बाहर में हमारी 4 साइटें हैं। वो अलग अलग एक एरिया की हैं ताकि जो हम पराली का आपको जैसे जानते हैं कि पराली का ये सीज़न चल रहा है, 20 अक्टूबर से अभी मेन लोकल पराली इकट्ठी करनी हम शुरू करेंगे। तो वो 4 साइटों में भी हम पराली इकट्ठी करते हैं और पराली की गांठों को स्टोर करते हैं ताकि हम अपने प्लांट को अपने रॉ मटेरियल को हम इकट्ठा कर सकें और यूज़ कर सकें। आने वाले समय में कोई और बढ़ाने की है इच्छा, मतलब जैसे 30-40 हज़ार एकड़ आपने बोला है? हाँ जी, आने वाले समय में और भी करोगे? आने वाले समय में हमारा खपत मतलब पराली को इकट्ठा करना अंदाज़ा 25% हमारा एम है कि और करेंगे। उसके लिए हमने प्लांट में एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ रखी है। वो मैं अभी आपको टाइम नहीं बता सकता कि कब करेंगे, लेकिन हमारा एम है कि हम 25% पराली और इकट्ठी करना जो है जैसे एरिया को बढ़ाएंगे, जिससे हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके इस प्लांट के लिए पराली इकट्ठी कर सकें और पराली को जलने से रोक सकें। ठीक है सर, इसमें हमारा ये है कि हम फील्ड से इस साल हमारा ये टारगेट है कि हम 65,000 से लेकर 70,000 टन पराली को इकट्ठा करेंगे। तो इस साल हमें इस चीज़ के लिए हमने बहुत सी मशीनरीज अपनी डिप्लॉय की हैं। हमारे तकरीबन 34 बेलर फील्ड पे उतरेंगे इस बार के लिए, जो कि बेल्स बनाएंगे और इन बेल्स का जो वेट आता है हमारा 450 से 500 के करीब के बीच में रहता है, केजीज़ के बीच में। और इससे हमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हम 65,000 से 70,000 टन पराली इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे हमारा इनडायरेक्टली 28,000 से 30,000 एकड़ एरिया जो है हम आसपास के एरिया का कवर कर रहे हैं। और हमारी रीच रहती है कि हम 15 से 20 किलोमीटर के बीच जितने भी फार्मर्स हैं उनको कवर करें। लेकिन इस बार अभी जैसे बारिशें हुई हैं तो हमारे लोकल एरिया में भी काम चल नहीं पाया, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमने अपनी रेंज को इंक्रीज़ किया ताकि हम अर्ली वैरायटी जो पैडी की है PB 1509 कि उसको हम कलेक्ट कर सके। तो हमने उसके लिए 35 से 40 किलोमीटर के बीच से अभी हम पराली ला रहे हैं। और जैसे जैसे अभी लोकल एरिया में पराली कटनी शुरू हो गई है जो मेन सीज़न वैरायटी है, तो अभी हम अपने लोकल एरिया पे फोकस करने वाले हैं। जैसे इस पराली से आप क्या क्या कुछ बनता है? हाँ जी, क्या क्या पराली से 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो हमारा है बायो CBG जिसको हम कंप्रेस्ड बायोगैस बोलते हैं, एंड दूसरा हमारा बनता है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि आप सामने देख भी रहे होंगे। तो ये है इसका बायो प्रोडक्ट, एंड जो गैस है वो हमारी जाती है इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पे। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको अभी एज ऑफ नाउ वी आर स्टोरिंग इट एंड वी आर लुकिंग ऑप्शंस दैट वेयर वी कैन सेल इट ऑफ। फैक्ट्री लगने से आसपास के लोगों को कितना रोज़गार मिला कह सकते हैं? क्योंकि एक इंडस्ट्री लगने से लोगों को रोज़गार बहुत मिलता है। कितना रोज़गार, कितने लोग यहाँ काम करते हैं, इस फैक्ट्री को चलाते हैं? कितने लोग बाहर से पराली लेके आते हैं, वो कहाँ से आपने रखे गए हैं? ठीक है, इसमें सर जो हमारी कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ है वो हमारी 100 के करीब है, लेकिन 65,000 से 70,000 टन पराली इकट्ठा करने के लिए हमने 150 लोग और हायर किए हैं। तो इतनी क्वांटिटी को कलेक्ट करने के लिए हमारी 150 की स्ट्रेंथ है। तो हमारी टोटल 250 के अराउंड आप समझ सकते हो कि हमारी ये स्ट्रेंथ है। और ये जो हमने पर्सनस को सिलेक्ट किया है ये हमारे लोकल फार्मर्स, उनके रिलेटिव्स हैं या फार्मर के कोई बेटे हैं या फार्मर खुद है, हमने उन्हीं पर्सनस को अप्रोच किया है जो कि बिल्कुल लोकली अवेलेबल हमारी मैन पावर है। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 45,000 ਏਕੜ ਲਹਿਰਗਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ, ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ। ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ।